Myself is Ravinder Singh. Today we have to discuss about the large scale retailers. In my earlier UTAPs, you have seen that retailers are basically divided in the two parts. One is the small scale retailers, another is the large scale retailer. So इससे पहले की जो lessons थे उसमें हमने small scale retailer पढ़ा. Now we have to start with the large scale retailers. Large scale retailing may be defined as retail trade involving operation on a large scale and sale of goods in small quantities. That means ये जो large scale retailing है ये इनके बेसिकली ऑपरेशन होते हैं लार्ज स्केल्स पर, जो लार्ज स्केल के ऑपरेशंस करते हैं, और सेल ऑफ गुड्स इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज द डेफिनेशन ऑफ रिटेलर्स. रिटेलर्स सेल द गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटी, बट इनका जो बिजनेस का जो साइज है वो बहुत लार्ज स्केल्स पर होता है. दिस मीन्स लार्ज स्केल्स रिटेलर्स डील्स इन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क. As according to their feature of the large scale retailer, they require a huge investment. इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, मीन्स कैपिटल चाहिए होती है. They have a large size showrooms to sell the goods. इनको बड़े बड़े showrooms चाहिए to sell the goods. They are generally located at a central place or in a shopping center. ये जो large scale retailers होते हैं ये central places पर होते हैं और shopping centers के पास होते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट देयर शोरूम्स. इनके कस्टमर्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर इनके शोरूम्स में और इनके शॉपिंग सेंटर में आते हैं. सो दीज आर द लार्ज स्केल रिटेलर्स. इन अ सिंपल वर्ड्स वी हैव टू से दैट कि लार्ज स्केल ऑपरेशन ऑन अ लार्ज रिटेलर्स आर ऑन द लार्ज स्केल एंड सेल द गुड्स इन द small quantity. Now next, the large scale retailers are divided into the 6 parts. They have 6 types of this. First, there is a departmental store. Second, multiple shops. Multiple shops are also known as the chain store. Third, mail order houses. Fourth, consumer cooperative stores. Next, there is a super bazaar, and then the last and the sixth one is there is a vending machine. But as per the CBSE syllabus, the departmental stores and multiple shops are in our syllabus. So in this video lesson we have discussed only the departmental stores and multiple shops. Now first we have to discuss about the departmental store. अभी departmental store होते क्या? Departmental store is a large scale retail shops selling a wide variety of goods in a different departments under a one roof and under a one management. Each department deals in a separate line of goods like stationery, books, furniture, clothing, footwear, etc. Up in simple words, large retail scale retail shops, departmental scale जो होता है वो wide variety of goods means इनके पास different varieties of goods होती हैं. Basically they sold the goods from pen to piano. एक छोटे से गुड्स से लेकर बड़े गुड्स तक यहाँ पर बड़े आराम से मिल जाता है. इन्होंने एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है. टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग है, कंज्यूमर गुड्स का डिपार्टमेंट अलग है, और ये सारे का सारा एक मैनेजमेंट के अंडर ही काम करता है. और हर डिपार्टमेंट में एक लाइन के गुड्स होते हैं. जैसे स्टेशनरी है तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, बुक्स है तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, फर्नीचर है तो अलग डिपार्टमेंट होगा, क्लोथिंग है तो अलग डिपार्टमेंट होगा, और फुटवेयर है तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. दैट मीन्स डिपार्टमेंटल स्टोर इज नोन एज लार्ज स्केल रिटेल शॉप अंडर अ वन रूफ विद द वन management. Now we have to discuss about their features.
What are their features? First feature is additional facilities like restaurant, telephone booth, restroom, play areas. अब इसका मीनिंग होता क्या है? A modern departmental store may provide all facilities such as restaurant, travel, information bureau, telephone booth, restroom, etc. As such, they are trying to provide maximum services to higher class of customer for whom price is of a secondary importance. ये क्या करते हैं कि अपने कस्टमर्स को फैसिलिटीज देना चाहते हैं, उस फैसिलिटीज को ये बेसिकली हायर क्लास ऑफ इनकम ग्रुप्स को देना चाहते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके. ये नहीं कि फैसिलिटीज दे रहे हैं उसके चार्ज ही नहीं हो, उसमें वो सब कुछ वो चार्ज कर रहे हैं. नेक्स्ट देयर इज departmental stores are usually located in a central place of a big city. This means these stores are generally located at a central place in heart of the city, which cater to a large number of customers. Central place of big city से इनको फायदा क्या होता है कि there are large number of customers may come in their departmental store. Next there is the departmental stores is a large scale retail organization generally formed as a joint stock companies. इसका क्या मीनिंग होता है? As the size of these stores is may very large, they are generally formed as a joint stock company managed by the board of directors. There is a managing director assisted by a general manager और सेवरल डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट. मीन जैसे हमारी मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसी तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करता है, जिसमें एक उनका जनरल मैनेजर होता है और अलग अलग डिफरेंट इनके डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर होते हैं. सो इस तरह से ये काम करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज eliminating of middlemen. They are making their purchases directly from producers. This means a departmental store combines both the function of retailing as well as a warehousing. They purchase directly from the manufacturer and operate separate warehouses that they may help in eliminating undesirable middlemen between the producer and the customers. ये क्या करते हैं, ये इनके अपने वेयर हाउस होता है. डिपार्टमेंटल स्टोर में अपने अपने वेयर हाउस होते हैं, अपने अपने गोडाउन्स होते हैं. तो उन वेयर हाउसेस में ये क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से माल ले लेते हैं और उसको अलग अलग वेयर हाउसेस में रख देते हैं. और उसके बाद जो अनडिजायरेबल मिडल मैन है इन बिटवीन द रिटेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स, वो सारे खत्म हो जाते हैं. देयर आफ्टर दे हैव टू सेटिस्फाइड विद द देयर कंज्यूमर. फिर ये इजीली अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट फीचर इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर सेंट्रलाइज्ड परचेजेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड सेलिंग्स. अब इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग मैनेजमेंट. इनकी एक जो परचेज होती है, जो मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं, इनकी सेंट्रलाइज प्लेस्ड होती है. All the purchases in a departmental store are made centrally by the purchase department of the store, where the sales are decentralized in different departments. जब सेल्स की बारी आती है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर उसके सेल्स करने लग जाते हैं. So these are the basically features of the department. Now we have to discuss about the various advantages of departmental stores. First, there is a central location attracts more and more customer. कि डिपार्टमेंटल जो हमारा सेंटर लोकेटेड ऑफ द सिटी होता है, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं. सेकंड, शॉपिंग कन्वीनियंस. शॉपिंग कन्वीनियंस का मतलब जब एक ही रूफ के अंडर, शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर एज दे गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर अ वन रूफ. जब इनको एक ही रूफ मीन्स एक ही बिल्डिंग में सब कुछ मिलने लग जाएगा तो इनके लिए प्रोडक्ट को खरीदना इजी हो जाता है. Now thereafter, consumer services. Departmental store are provided
The various consumer services like free home delivery, telephone facilities, restaurant, restroom, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो अपने कस्टमर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद टेकिंग सम चार्जेस, और जिससे कि उनको कन्वीनियंटली वो काम को कर सकें, और एक ही रूफ के अंडर होने से वो बहुत से काम इजीली कर पाते हैं. नेक्स्ट देयर इज अ economies of a large scale operation in the matter of transportation, advertising, purchase, etc. This means कि जो large scale operation है बड़ा इकोनॉमिकल होता है. यहाँ पर इससे कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट बड़ा इजी होता है, परचेज करना भी बहुत इजीली हो जाता है. जब डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने के कारण एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट का काम भी करता है. दिस मीन्स वी हैव टू से दैट कि ऑटोमेटिकली म्यूचुअली एडवर्टाइजमेंट एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के होने के कारण, और जो एक ही रूप में होने के कारण ये सारे एक दूसरे को एडवर्टाइज कर लेते हैं. दैट मीन्स कि इजीली दे आर बाइंग द गुड्स. नाउ देयर आफ्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. देखिए, हर चीज की कुछ ना कुछ एडवांटेज होती है और कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है. इसी तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर की भी कुछ लिमिटेशंस होती है. फर्स्ट, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन. लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होने के कारण और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होने के कारण जो सेलर्स हैं वो पर्सनल अपने कस्टमर को अटेंशन नहीं दे पाते. सेकंड, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू हैवी रेंट्स, सैलरीज ऑफ द एक्सपर्ट्स होने के कारण यहाँ पर इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल्स पर होते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है. नेक्स्ट, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. दे incur high loss due to change in taste, fashion, consumer, as they have a large quantity of stock. डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, इनके वेयर हाउस अपने होते हैं और ये उस वेयर हाउस में बड़ा लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक रखते हैं, बहुत ज्यादा ये बल्क में स्टोरेज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आती हैं एज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, फैशन ऑफ द कस्टमर, एनी अदर रीजन, when the technologies is changes, प्रोडक्ट के डिजाइन्स आर चेंजेस, तो क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होने लग जाता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज इनकन्वीनियंट लोकेशंस. इनकन्वीनियंट लोकेशन का मतलब ये हो जाता है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द स्टोर्स मेक इनकन्वीनियंट टू द कस्टमर हु रिजाइड अवे फ्रॉम इट. कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनकी रेजिडेंस सेंट्रल लोकेशन ऑफ सिटी के होने की दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली ले ही नहीं पाते, और कुछ पार्किंग डिफिकल्टी होने लग जाती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है सेंट्रल प्लेस ऑफ अ सिटी पर. ड्यू टू ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जाना आना मुश्किल होता है. इट टेक द टाइम टू बाय. बहुत टाइम लग जाता है आने जाने में और बाय करने में. Next, there is a very huge investment required for the establishment or maintenance of the departmental store. कि आपको डिपार्टमेंटल स्टोर को ऑपरेट करने में, एस्टेब्लिश करने में और उसको मेंटेन करने में बहुत लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, लार्ज स्केल पर उसका कैपिटल लगाना पड़ता है. ये स्मॉल स्केल पर हो ही नहीं सकता. सो दिस इज द बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. सो अप टू दिस वी हैव डिस्कस्ड the features, advantage and limitation of departmental stores, जो अभी हमने इस लेसन में अब तक पढ़ा. Now we have to going to the next fixed shop retailers, that is known as a multiple shops or chain store. Multiple shop और chain store होते क्या है? It is a system of branch shops operated under a centralized management and dealing similar lines of goods. इसमें सिमिलर लाइन, एक ही लाइन के गुड्स होते हैं और इसकी सारी मैनेजमेंट एक ही होती है. ब्रांचेस ऑफ द शॉप्स आर लोकेटेड थ्रू ऑफ द नेशन
under the same name and the management and they specialize in one or two lines of goods. पूरी एक कंट्री में जो इनकी ब्रांचेस होती हैं बिल्कुल सेम नाम सर होती हैं, लाइक बाटा. बाटा अपने आप में एक नाम है. जिस मर्जी स्टेट ऑफ कंट्री में चले जाइए सब जगह आपको एक ही नाम मिलेगा. मैनेजमेंट भी इनकी सेम मिलेगी. अब बाटा का नाम सुनते ही लोगों को यह समझ में आ जाता है कि दे आर डील्स इन द फुटवेयर्स. आइदर चिल्ड्रंस के हैं, आइदर लेडीज के हैं, आइदर बॉयज के हैं. दैट मीन दे आर स्पेशलाइज इन द वन टाइप ऑफ गुड्स. Thereafter, multiple shops are organized by the manufacturers. ये मैन्युफैक्चरर द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं टू एलिमिनेट द मिडलमैन. कि जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं वो अपने गुड्स आप ही बनाते हैं, लाइक बाटा शू कंपनी, बॉम्बे डाइंग, शोरूम्स, बिग बाजार्स, कॉफी डे, रेमंड्स, ये सारे के सारे अपने आप में इनके मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं. Multiple shops, there are a uniformity in advertisement, window display and interior display of the goods. Uniformity का मतलब यहाँ पर क्या है? Uniformity का मतलब हर जगह पर ब्रांचेस अलग अलग होने के बाद भी एडवर्टाइजमेंट भी सेम होती है, विंडो डिस्प्ले भी सेम होता है, इंटीरियर डिस्प्ले भी सेम होता है. और इनकी इवन यहाँ तक ये खासियत है कि इनका प्राइस ऑफ गुड्स, अगर एक शॉप पर एक गुड्स का ₹10,000 या 5,000 प्राइस है तो नेक्स्ट शॉप पर भी वही प्राइस में आपको गुड्स सेम क्वालिटी में गुड्स मिलेंगे, बट द प्राइस इज यूनिफॉर्म. हर जगह पर प्राइस सेम मिलेगा आपको. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ द मल्टीपल शॉप्स. सबसे पहला आ रहा है कन्वीनियंट लोकेशन फॉर कंज्यूमर्स. हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए इनकी लोकेशन बड़ी कन्वीनियंट होती है, नियर बाय रेजिडेंस और नियर बाय द मार्केट्स होती है. इन दिस these shops are located in fairly populous localities where sufficient number of customers can be approached. The idea to serve the customer at a point which is nearest to their residence or workplace rather than attracting them to the central place. सेंट्रल प्लेस की बजाय ये जो है हमारे नियर बाय रेजिडेंस और हमारे वर्क प्लेस के आसपास होता है, जिससे कि कस्टमर और कंज्यूमर इजीली अप्रोच कर पाते हैं फॉर परचेजिंग द गुड्स. नेक्स्ट देयर इज सेंट्रलाइज बाइंग एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग. मीन इनकी बाइंग एक जगह पर होती है और सेलिंग डिसेंट्रलाइज अलग अलग जगह पर होती है. Centralized management and unified system of controls. अब centralized buying and decentralized selling as well as centralized management and unified system of control. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है the manufacturing of merchandise for all the retail units is centralized at the head office, from where the goods are dispatched to each of the shops according to their requirements. These results in savings in the cost of operation of these stores. अब सेंट्रलाइज बाइंग, इसका मतलब हुआ कि हेड ऑफिस सारे के सारे गुड्स खरीदेगा और उसको डिसेंट्रलाइज अलग अलग शॉप्स पर भेज देगा जहां पर ये सेलिंग के लिए रखे जाते हैं. और इट कैन बी ऑपरेटेड बाय द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. और जिससे क्या होता है, एक ही सिस्टम कंट्रोल होने की वजह से हमारा क्या होता है, इसकी ऑपरेशन कॉस्ट में हमारी बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हमारी इकोनॉमिकल हो जाती है. नेक्स्ट फीचर इज मल्टीपल शॉप फॉलो द कैश एंड कैरी प्रिंसिपल. दिस मीन्स द प्राइस ऑफ द गुड्स इन सच शॉप्स आर फिक्स्ड एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस. द कैश रिलाइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ मर्केंडाइज is depend daily into local bank account on behalf of the head office and the report sent to the head office in this regard. मीन डेली गुड्स कैश पर बेचे जाते हैं और सबको एक साथ इकट्ठा करके हेड ऑफिस सेम डे भेज दिया जाता है. नेक्स्ट देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन शॉप्स डिजाइन. इनकी जो शॉप्स हैं वो सारी की सारी यूनिफॉर्म्स होती हैं, एक जैसी होती है, इनका लेआउट एक जैसा होता है. Now, next is proper inspection from the head office ensures the smooth functioning.
इसका मतलब होता है द हेड ऑफिस नॉर्मली अपॉइंट्स इंस्पेक्टर who are concerned with the day-to-day supervision of the shops in respect of quality of customers services provided, adherence to the policies of the head office and so. That means कि head office से एक ना एक इंस्पेक्टर सुपरवाइजर रख दिया जाता है जो हमारे मल्टीपल शॉप्स की स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ कस्टमर सर्विस की तरफ सिंसियरली ध्यान देता है और डेली टू डेली रिपोर्ट करता है. Now thereafter we have to discuss about the advantages of multiple shops. First, there is economics of large scale buying. Centralized purchase attracts higher discount and transportation cost. Common advertisement means centralized purchase करने से हमें डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है और हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है. एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन कि डायरेक्टली बल्क परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर और खुद ही प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाते हैं और खुद ही वो डायरेक्ट लिंक में होते हैं, इससे मिडलमैन एलिमिनेशन. नो बैड डेट्स, दे फॉलो द कैश एंड कैरी प्रिंसिपल जिसकी वजह से इनके बैड डेट्स होने के चांसेस भी नहीं होते. नेक्स्ट, देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ रिस्क. Loss of one shop may be compensated by the profits in the other shops. That means अगर एक शॉप पर सेल कम है दूसरी शॉप पर सेल्स ज्यादा है तो दैट मीन्स उसका जो लॉस है वो कंपनसेट हो जाता है. लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की हेड ऑफिस द्वारा सेंट्रलाइज परचेज होने की वजह से क्या होता है कि इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होता है. फ्लेक्सिबिलिटी, अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेस कैन बी शिफ्टेड टू समवेयर एल्स कि जैसे जैसे कोई ब्रांच हमारी अनप्रॉफिटेबल चल रही है उसको हम शिफ्ट करके दूसरी लोकेलिटी दूसरी रेजिडेंस एरिया के पास ले जा सकते हैं. सो बाय दिस वे वी हैव टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल शॉप्स. इन दिस फर्स्ट देयर इज अ लिमिटेड चॉइस. लिमिटेड चॉइस मीन्स मल्टीपल शॉप्स दे डील इन द वन और टू लाइन्स ऑफ गुड्स. कि मल्टीपल शॉप जो होती है वो एक या दो लाइंस के गुड्स पे ही ज्यादातर कंसंट्रेट करती है जिसके कारण या एक या दो लाइंस पे वो डील करती है जिसके कारण कस्टमर के लिए ये लिमिटेड चॉइस हो जाती है. नेक्स्ट, देयर इज अ लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन. दिस मीन्स ड्यू टू सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस देयर इज ओनली लेस चांस फॉर इनिशिएटिव फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच मैनेजर. जब सारी प्लान एंड पॉलिसीज हेड ऑफिस से बनकर आती है जिसकी वजह से ब्रांच मैनेजर इसमें इनिशिएट नहीं लेते और मोटिवेट नहीं हो पाते. दैट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन. नेक्स्ट, देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट ड्यू टू द लार्ज स्केल ऑपरेशन. इन द मल्टीपल शॉप these are on the large scales. Due to this, there is a no personal contract between the head office and the customer as well as in the branch office. Now there is a risk due to change in the taste and the fashion leads to great loss. जैसे जैसे फैशंस और टेस्ट ऑफ द कस्टमर चेंज हो जाता है मल्टीपल शॉप्स में भी आपका रिस्क बढ़ता चला जाता है. सो दीज आर द लिमिटेशन, advantage and features of multiple shops. Up to this, we have to discuss about the various feature, advantage, limitation of departmental stores and multiple shops. Now we have to discuss about the difference between these two large scales retailers. Now first there is departmental store offer the variety of products. In this, but the multiple shops provide only a limited line of products. That is, एक या दो line of products में deal करता है और departmental store जो होता है वो आपका variety of goods में deal करता है. Second, in the departmental store, more capital is required to run the different department. Departmental store में अलग-अलग departmental होने की वजह से क्या होता है कि इनको मोर इन्वेस्टमेंट्स, मोर कैपिटल, मोर मनी की जरूरत होती है. एज कंपेरेटिव टू दिस, मल्टीपल शॉप्स रिक्वायर द लेस कैपिटल. डिपार्टमेंटल स्टोर फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइडेड टू कस्टमर मींस
कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है अपने कस्टमर को अलग तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक द होम डिलीवरी, बट मल्टीपल शॉप्स आर नॉट प्रोवाइडेड द सच टाइप्स ऑफ सर्विसेज. डिपार्टमेंटल स्टोर्स डील्स इन द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चर. यहाँ पर अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं, बट मल्टीपल शॉप्स डील्स ओनली इन द मैन्युफैक्चर, मीन वन लाइन ऑफ गुड्स में डील करते हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर्स अट्रैक्ट्स द हायर इनकम ग्रुप्स. वो अपने कस्टमर जो होते हैं वो हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है. बट इन द मल्टीपल शॉप्स द ऑल कस्टमर्स मीन ऑल क्लासेस, either low income group है, middle level group है, higher groups है, all are attracted in the middle shops. Departmental stores no policy of transfer of goods from one department to another department. एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अलग अलग गुड्स होते हैं, इसलिए ट्रांसफर ही नहीं किए जा सकते. बट इन द मल्टीपल शॉप्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एज दे डील इन द सेम टाइप्स ऑफ गुड्स. सेम ब्रांचेस में सेम टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, इसलिए जब मर्जी आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर अपने गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स में बी डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर. अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स होने के कारण जो है प्राइस डिफरेंट होते हैं, बट इन द मल्टीपल शॉप्स द प्राइस इज ऑलवेज फिक्स. इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स देयर इज अ हाई रिस्क इज इन्वॉल्व्ड, बट एज कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर मल्टीपल शॉप्स हैज द low risk as unprofitable branches can be closed or shifted to another branch. So these are the differences between departmental store as well as in the multiple shops. So in this video lesson we have to discuss detailed discussion about the departmental stores and the multiple shops. So thanks, have a nice day.